Hello my dear students. Now I am going to explain class 5th science chapter 5 part 2. In my first video I have been explained about respiratory system and nervous system. And in this video I am going to explain about peripheral nervous system and about sense organs. So first we will discuss about peripheral nervous system. What is nerves? A large network of nerves is present in the body that constitutes the peripheral nerve system. It connects the brain and the spinal cord to every part of the body. इसका क्या काम है? ये ब्रेन और स्पिनल कोड को बॉडी के एवरी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है. एंड नर्व्स कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी. That next is what is neurons. What is neurons? Nerves are made up of neurons और nerve cells. Nerves किससे बने होते हैं? Neurons से और nerve cells से. So the neurons is the basic structural and functional unit of the nervous system. And all neurons have a cell body and one or more fibers. After that, how many kinds of nerves? There are three kinds of nerves. First is sensory nerves, second is motor nerves, and third is association nerves. Okay, so first we will discuss about sensory nerves. What is the work of sensory nerves? These nerves send messages from the sense organs to the brain or the spinal cord. Okay, इसका क्या काम होता है? ये मैसेज ब्रेन ऑर्गन, द ब्रेन और स्पिनल कोड, ये मैसेज ब्रेन को और स्पिनल कोड को मैसेज, कोई भी मैसेज सेंड करने का काम करता है. आफ्टर दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ मोटर नर्व्स? दीज नर्व्स कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन और स्पिनल कोड टू द मसल्स और glands. Okay, after that what is the work of association nerves? They connect sensory nerves and motor nerves and pass message between them. ये क्या करता है? सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स को कनेक्ट करने का काम करता है और मैसेज, दोनों के बीच में मैसेज पास करने का काम करता है. ओके, सो these are the types of nerves. After that we will discuss about sense organs. We all know how many sense organs in our body? 5 sense organs: eyes, nose, tongue, ears, tongues and skins. Okay, and skin. These organs helps in the proper functioning of the nervous system. And what is the word? And with the help of these nervous system, we sight and hear, smell, taste and feel. Okay, with the help of eyes help us to see. Nose help us to smell anything, and ears help us to hear anything, and tongue help us to taste anything, and skin help us to feel anything. Okay, these are the sense organs and this is the work. Okay, after that we will discuss about eyes. The eyes are the sight into the bony sockets of the skull. The eyelids, the eyelashes and the eyebrow keep our eyes clean and dust free and prevent any injuries. Okay, and how to care of your eyes? Do not read dim लाइट्स एंड डू नॉट रीड लेइंग डाउन. बहुत ज़्यादा धीमी लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेंड होके, मतलब नीचे की तरफ झुक के नहीं पढ़ना चाहिए. एंड अपनी आईज को वॉश योर आईज रेगुलरली एंड व्हाइल स्टडीइंग कीप द स्टडी मटेरियल्स एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आईज. एंड डोंट वॉच टीवी और प्ले कंप्यूटर गेम्स फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब बहुत समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए और बहुत समय तक कंप्यूटर पे गेम्स नहीं खेलना चाहिए. टेक रेस्ट इन बिटवीन. दोनों के बीच में थोड़ा गैप लेना चाहिए. बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, लॉन्ग समय तक बैठकर टीवी या वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए. आपकी आईज को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी आंखों को. एंड
have sound sleep at night and drink milk every day and eat vegetables rich in vitamins. After that, next is ear. What is the work of ear and how many parts of ear? With the help of ear we hear anything. ear की help से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सुनने में ears हमारी help करते हैं. And the outer ear and the middle ear and the inner ear, these are the three parts of ear. The outer ear collect sounds waves through ear canal and send them to the inner ear through the middle ear. Okay, outer ear का क्या काम करता है, वो वेब से साउंड जो भी वॉइस होती है उसको कलेक्ट करके कहाँ पे सेंड करते हैं, इनर ईयर को सेंड करने का काम करते हैं. आफ्टर दैट, हाउ टू केयर ऑफ द ईयर्स. अवॉइड लाउड साउंड एंड लाउड नॉइज and always keep outer ear clean using a clean towel. After that, never remove ear wax yourself. It protect the ear from any damage or infection. इससे क्या होता है, आपकी ईयर, आपके कानों में कोई भी डैमेज हो सकता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द ईयर, और अगर आपकी कान में कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. एंड नेवर पॉक एनीथिंग इन योर ईयर, मतलब कुछ भी, नॉट इवन अ कॉटन बड, मतलब कभी भी अपने कानों में कोई भी चीज़, जैसे होता है ना, आप कभी भी ईयर कान में खुजली होती है तो हम कुछ भी, कोई भी लकड़ी या फिर कुछ भी ऐसे करके पॉक करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, सो दीज ऑल आर, सब ये आपकी ईयर्स को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं. आफ्टर दैट माई नेक्स्ट टॉपिक इज नोज. द नोज हैज टू होल्स कॉल्ड nostrils connected by a wall of bone called septum. In the upper part of the inner nose there is a special area called the olfactory area. Okay, and it has many nerves endings called olfactory receptors. Okay, and these nerves ending help to the detect smell. After that, when we suffer from cold, we lose our sense of smell because of the swelling in the nerves ending. And how to care, कैसे अपनी नाक को, मतलब नोज की देखरेख करनी चाहिए, कैसे देखते हैं. ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज, हमेशा सांस हमें नाक की हेल्प से लेना चाहिए. एंड द hair inside the nose filters dust particles and prevent them from entering our lungs. And if never ending get swollen and stem inhalation in the best remedy. And never put your finger into the nose. Okay, after that my next topic is tongue. The tongue has many tiny taste buds for the digestion of taste. The taste buds are sensitive to 4 types of taste. कितनी क्या होता है, स्वीट टेस्ट, salty, bitter and sour. After that, how to care, और कैसे भी जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, च्यू करते हैं, तो हमें इसकी हेल्प से टेस्ट का पता चलता है. कुछ मीठा होता है, खट्टा होता है, और क्या तीखा होता है, और स्पाइसी होता है. ठीक है, तो इसकी हेल्प, टंग की हेल्प से हमें टेस्ट का पता चलता है. आफ्टर दैट, हाउ टू केयर ऑफ द टंग. अवॉइड टू हॉट और स्पाइसी फूड. क्लीन योर टंग रेगुलरली बाय यूजिंग अ टंग क्लीनर. ओके, टंग क्लीनर का यूज करके हमेशा अपने टंग को क्लीन करना चाहिए. एंड टेक अ बैलेंस डाइट. इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग माउथ यूजर्स. ओके, हमेशा बैलेंस डाइट, जो भी बैलेंस अच्छी फूड है जो बैलेंस डाइट में आती है उसको लेना चाहिए. इससे हमारे माउथ को क्या करते हैं, स्लाइवा जो होता है वो प्रॉपर वे में मिलता है. आफ्टर दैट, स्किन. माय नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज स्किन. द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट कवर द एंटायर बॉडी एंड प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स. एंड इट हैज numerous tiny nerves ending which help us to feel by touching different things. It can feel, for example, heat, pain, pressure, etc. स्किन की हेल्प से हमें क्या होता है, हमेशा कोल्डनेस का, हॉटनेस का अभाव, मतलब पता चलता है. ठीक है. आफ्टर दैट, हाउ टू केयर ऑफ द स्किन. ऑलवेज क्लीन योर स्किन विथ सोप एंड वाटर.
हमेशा अपने स्किन को क्या करना चाहिए, सोप, साबुन और वाटर से क्लीन करना चाहिए. ऑलवेज कीप योर स्किन ड्राई बिकॉज इट्स डर्टी एंड वार्म स्किन इनवाइट्स जर्म्स. और जो भी वार्म स्किन होते हैं वो क्या करते हैं, जर्म्स मतलब कीटाणु को ते हैं ऑन इट एंड स्प्रेड स्किन इन्फेक्शन. और उससे स्किन इन्फेक्शन भी होता है. जैसे कि अगर कीटाणु आके आपकी बॉडी पे बैठेंगे तो आपको स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है. इसीलिए हमेशा अपनी बॉडी पे ऑयल या मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए. ऑलवेज ट्रीट कट्स और वुंड ऑन द स्किन विद एन एंटीसेप्टिक लोशन. और हमेशा अपने स्किन पे एंटीसेप्टिक लोशन या फिर ऑयल, कोकोनट ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज करते हैं उसका यूज करना चाहिए. क्योंकि जब भी आपकी स्किन सूखी होगी तो उस पे आके मॉस्किटोज या फिर कुछ ऐसे जम्स बैठेंगे जो आपकी स्किन को हानि पहुंचाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, माय टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. बाय स्टूडेंट्स. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू